عکس نہ ہونا چاہیے۔ تو یہ جو سارا ہے اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو ان اللہ حبب الیکم الایمان وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ نے کیا پسند کیا ہمارے لیے؟ ان اللہ حبب الیکم الایمان، اللہ نے ہمارے لیے کیا پسند کیا اور ہمارے لیے کیا ناپسند کیا؟ کفر کو، فسق کو، عصیان کو، گناہوں کو۔ اب ضرور جاننا چاہیے فسق کس کو کہتے ہیں۔ ہاں چلو ہم کافر نہیں ہیں، فاسق تو نہیں ہیں۔ اچھا، گناہوں کو عصیان، کرہ الیکم الکفر والفسوق، عصیان یعنی عاصی، گناہ۔ تو کیا کیا گناہ کرتے ہیں تو فوراً توبہ کی فکر کرنی چاہیے، فوراً توبہ کی فکر کرنی چاہیے۔ زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ زندگی کا کسی کو بھروسہ ہے؟ جی زندگی تو یہ یہاں سے یہ اللہ نے جو نعمت دی ہے، دولت دی ہے، اللہ نہ کرے کہ اس کو سلب کرے، اللہ نہ کرے کہ یہ موجب عذاب ہو، اللہ کرے کہ یہ موجب نجات نہ صرف آپ کے لیے بلکہ آپ کے خاندان بلکہ امت کے لیے، اللہ کرے اللہ سب کو قبول کرے۔ تو ان اللہ حبب الیکم ایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ تو جب بندے نے اللہ سے مانگا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو یہ اللہ میں خود تو عبادت نہیں کر سکتا، مجھے تو آپ کی مدد کی ضرورت ہے، میں تو بڑا کمزور ہوں اور یہ شیطان بڑا مضبوط ہے۔ اے اللہ ہم تجھ سے کیا مانگتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں۔ اب سب سے پہلے اور سب سے اہم جو قرآن نے ہمیں یہاں سمجھایا، اللہ نے سمجھایا، یہ اللہ کا کرم ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ آگے کیا آتا ہے؟ انعمت علیہم، جن پر انعام ہوا، اور انعام ظاہری میں رسولوں کا بھیجنا، قرآن کا بھیجنا، رسولوں کا بھیجنا، قرآن کا بھیجنا، یہ ساری نعمتیں ہیں جو ہم کو دی گئی ہیں، سمجھے؟ تو میں کیا عرض کر رہا تھا؟ جی ہاں، اللہ تو سب سے پہلے، سب سے اہم اور سب سے یعنی نمبر 1 جو بندے کے یعنی بندے کا جس چیز کا محتاج ہے وہ دعا سکھائی۔ سب سے پہلے اللہ نے کہا کہ سب سے زیادہ آپ کو ہدایت کی ضرورت ہے، تو اس لیے سب سے پہلے کیا مانگا بندے نے؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ کوئی اور چیز تو نہیں مانگی، کوئی اور چیز نہیں سکھائی اللہ نے۔ تم کو سب سے زیادہ کس چیز کی ضرورت ہے؟ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، ہدایت اللہ کی طرف سے ہم نے ان کو چن لیا۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہدایت، وَهَدَيْنَاهُمْ، تو ہدایت اللہ نے براہ راست اپنے پاس رکھی ہے، کسی کو نہیں دی ہے۔ اور یہاں سمجھنا یہ ہے کہ سب سے اول اور اہم اور سب سے اعلیٰ ترین چیز جو بندے کو چاہیے وہ ہدایت ہے۔ کیا ہے؟ ہدایت ہے، اِلیٰ صراط مستقیم۔ تو فرمایا صراط یعنی راستہ، یہ سین سے بھی پڑھا جاتا ہے، صاد سے بھی پڑھا جاتا ہے، اکثر صاد سے ہی لکھا جاتا ہے، سین سے صراط کے بھی اسی معنی میں آتے ہیں۔ تو فرمایا صراط صراطان، الصراط، قرآن میں بھی 2 بار آیا، قرآن میں اہدنا الصراط المستقیم، تو پھر مقرر کر کے صراط الذین، صراط کتنی بار آیا؟ 2 بار آیا۔ تو فرمایا مفسرین نے صراط کا یہ صراطان 2، صراط من العبد الى الرب، من العبد، والصراط من الرب الى العبد، ایک راستہ بندے سے اللہ رب کی طرف اور ایک راستہ رب سے بندے کی طرف۔ اللہ کرے ہماری سمجھ میں آ جائے۔ الصراط من العبد الى الرب
वस्सिरात मिन अर्रब इलल अब्द। और पहला रास्ता जो है ये मामून नहीं है। मिनल अब जो बंदा जाता है रब की तरफ, तो इस रास्ते में इसको लअक़अदुन्ना लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। शैतान ने कसम खाई कि मैं इस रास्ते में इसको रहूंगा और इसको इस रास्ते से हटाने की पूरी कोशिश करूंगा। हाँ, अगर वहां से वो मुनादी आ गई वज्तबैनाहु वहदैनाहु, तो फिर उसमें दाखिल हो जाएगा वइन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, ए इब्लीस मरदूद, ये मेरा बंदा है, इस पर तेरी नहीं चलेगी। ये दूसरा मामूल रास्ता है। अल्लाह करे कि वो रास्ता अल्लाह नसीब करे। समझ गए नहीं समझ गए? एक रास्ता अस्सिरात मिनल अब्द इलल रब, वो दूसरा रास्ता मिनल रब इलल अब्द। हाँ, जब उसने हदैना में दाखिल कर दिया, वज्तबैना में दाखिल कर दिया, तो मसला तो हल हो गया। अब क्या ज़रूरत है अल्लाह के साथ चिपकने की? हिदायत उसी के पास है, किसी के पास नहीं है। ये सारा मामला अल्लाह के हाथ में। अल्लाह की इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ फी ज़ुल्मतिन, इन्नल्लाह खलक़ल खल्क़ सुम्मा रश्श अलैहिम मिन नूरी। अल्लाह ने मखलूक को अंधेरे में पैदा किया, जुल्मत में पैदा किया, और फिर उसमें अपने नूर की बारिश की। ये मिन तबीजिया है, अपने नूर में से। मिन नूरी, मिन क्या है? तबीजिया है। तबीजिया समझते हो अय्युहत्तुल्लाह? ये मिन रश्श अलैहिम मिन नूरी फमन असाबा वहतदा। और जिसको वो नूर के, अल्लाह ने उसके बाद जब बंदों को जुल्मत में बनाया, फिर उनको नूर की क्या की? बारिश की, छिड़काव किया, और जिसको जितना जितना नूर का हिस्सा मिला उसको उतनी उतनी हिदायत मिली। ये सारा क्या है? ये सारा अल्लाह के हाथ में है। और अल्लाह जल्ल शानहू के साथ क्या लगाना है? तो इनाम ज़ाहिरा क्या है? इनाम ज़ाहिरा इरसाल रसूल, इंजाल कुतुब व तौफीक कबूल हक। अल्लाहु अकबर। क्या है? अल्लाह ने रसूलों को भेजा, अल्लाह ने इनाम किया। अल्लाह ने कुरान को भेजा, अल्लाह ने इनाम किया। अल्लाह ने कबूल हक की सलाहियत रखी। आदि साहब से पूछो कितने लोगों को उस आदि साहब ने ये दूसरा आदि साहब ने, क्योंकि यूनिवर्सिटी में पढ़ा है ना इसने, कितने लोग हक को हक नहीं समझ पाते। अल्लाह ने कहर कर दिया जवाब। अल्लाह ने साफ दलाइल से आप सामने बात रखो, लेकिन अंदर घुसती नहीं, अंदर घुसती नहीं। अल्लाह ने कहर कर दिया, खत्म अल्लाह वाला करोगे, अल्लाह ने मोहर लगा दी, अंदर नहीं जाएगी इनको। आप इनको कुछ भी कहो, हमारी क्या मजाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बसा देखो, लेकिन अबू जहल की खोपड़ी में कुछ नहीं गया, अबू लहब की खोपड़ी में कुछ नहीं गया। कहा नहीं कहा, वहां तो खत्म अल्लाह वाला कुलूब, उन्होंने अपनी सलाहियतों को सलब कर दिया। आज भी आप देखो, आज भी आप देखो कि हक इतना आवाज है और उसके बाद इनका, और उल्टे को हक समझता है, बातिल को हक समझता है, हक को बातिल समझता है। ये कहरे इलाही है। तो ये कबूलियत हक की तौफीक, ये अल्लाह का इनाम है। वो लोग इनाम याफ्ता हैं जिनको अल्लाह ने ये तौफीक अता कर दी। उन लोगों का रास्ता ढूंढो, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम। इसमें हो, मैं तो इन मसलों में नहीं जाता ना, मुझे इन मसलों में जाने की ज़्यादा ये होती है। तो जब हमने इहदिना सिरातल मुस्तकीम मांगा, हमने क्या मांगा? ए अल्लाह हमें सिरात मुस्तकीम दे दो। तो अल्लाह ने जवाब क्या दिया? अल्लाह ने जवाब में किस तरफ इशारा किया? लोगों की तरफ इशारा किया। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, किताब की तरफ इशारा नहीं किया, किताब की तरफ इशारा नहीं किया। कुरान ये जवाब ये नहीं आया सिरातल कुरान, ऐसा जवाब नहीं है। अल्लज़ीना,
अनअमत अलैहिम, और वो तो खुद कुरान ने कहा फउलाइक मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदाए व सालिहीन। इनाम याफ्ता वो लोग हैं, वो नबीन हैं, सिद्दीकीन हैं, शुहदा हैं, सालिहीन। हाँ, उनके पास जाओ, उनसे सीखो सिरात मुस्तकीम। इन हाज़ा सिराती मुस्तकीमा, यही है मेरा वो सिरात मुस्तकीम। तो ये अलग बहस है, इसमें मुझे ये तो इशारतन मैंने अर्ज कर दिया, लेकिन कहने का ये मतलब है कि इनाम याफ्ता कौन है, इनाम याफ्ता कौन है। और सुनेगा इनाम याफ्ता कौन है? चलो सुनो। अनमल्लाहु अला असरारिहिम बि अनवारिल इनाया व अला अरवाहिम बि असरारिल हिदाया व अला कुलूबिहिम बि आसारिल विलाया व अला नुफूसिहिम फी कमइल हवा व कहर तब। ये लोग इनाम याफ्ता है जिनको अल्लाह ने, जिनके असरार को अपनी अनवार इनायत से नवाजा, जिनके अरवाह को अपने असरार हिदायत से नवाजा, जिनके कुलूब को अपने आसार विलायत से नवाजा, और उनको अपने नफ्स पर कहर करने की तौफीक अता कर। वो कौम नफ्स व तब व कहर तब, ये अल्लाह का इनाम है जिसको दे देता। अक्सर लोग तो नफ्स के गुलाम, लेकिन उनको ये ताकत आ जाती है कि वो नफ्स को गुलाम बनाए। वो नफ्स को क्या बनाए? ये अल्लाह की तौफीक है, जिसको ये आती है वो इनाम याफ्ता है। कौन है वो इनाम याफ्ता? उसको अल्लाह का इनाम हो रहा है, समझे नहीं समझे? और उसके इनामात में वह हिफ्ज़ शरई, वो शरीयत की हिफाजत का उसको सलीका बताता है। क्या कर देता है? शरीयत की हिफाजत का तरीका और सलीका अल्लाह ताला उससे, वो शरीयत का पाबंद होता है। वो ऐसा दरवेश नहीं होता कहता शरीयत क्या है, वो दरवेशी तो शैतान ने की। शरीयत कोई चीज़ नहीं है, ये चीज़ कोई नहीं है, वो चीज़ कोई नहीं। हिफ्ज़ शरीयत की तौफीक इनाम इलाही में से एक बड़ा इनाम है। शरीयत की, समझे नहीं समझे? और इसमें शरीयत का जुज़े अल्तफ पता क्या है? अल्तफ मालूम है क्या होता है? लतीफ़ का सुपरलेटिव, इसमें तब्ज़ीर। अब इसमें तब्ज़ीर नहीं समझेंगे, सुपरलेटिव समझेंगे, अंग्रेजी समझेंगे। लतीफ़ इसका, इसमें तब्ज़ीर, सुपरलेटिव, अल्तफ यानी सबसे आला। इस शरीयत का सबसे आला दर्जा, उसका नाम इहसान। तअब्बुदुल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम यस्तती फइन्नहु यराका। शरीयत में इबादत में ऐसा दर्जा हासिल करना, वो मुकाम हासिल करना, इसको एहसान कहते हैं। बेहतर लफ्ज़ है, हदीस में एहसान ही आया है, समझे? और लोग इसको और अल्फाज से याद करते हैं और उससे लोगों को मुगालता हो जाता है। हदीस में, हदीस जबराइल में, मल एहसान, जबराइल अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा एहसान क्या है, दूसरा लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। एहसान क्या है? फरमाया तअब्बुदुल्लाह, अल एहसान तअब्बुदुल्लाह कअन्नका तराहु व इन लम यस्तती फइन्नहु यराक। तुम अल्लाह की इबादत इस तरह करो कि आप अल्लाह को देख रहे हो। अगर ये ताकत नहीं है तो ये मुराकबा करो, ये ख्याल करो कि वो मुझे देख रहा है, इस हाल में इबादत करो। ये दर्जा हासिल करना, ये शरीयत का जुज़े अल्ताफ है, शरीयत से बाहर नहीं है। और ये जो बुजुर्गों की तालीम होती है और मशाइख की तालीम होती है, वो यही दर्जा हासिल करने के लिए होती है, और ये शरीयत का हिस्सा है, शरीयत से बाहर नहीं है। अल्लाह करे हमारी समझ में आ जाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।